Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my 8th lecture on the topic human reproduction. That is the chapter number 3. So in our earlier classes we already discussed regarding the pre-fertilization event, the structure of male reproductive system, the structure of female reproductive system, and the term spermatogenesis and oogenesis. And we also discussed the menstruation cycle, the event occur during the menstrual cycle, etc. Today we're going to discuss the next topic, that is the fertilization and post fertilization events. Okay, so before we're going to discuss the process of fertilization, we have to know the actual meaning of fertilization. So in case of the human beings, though human beings are dioecious in nature, means the male and the female sex both are separate. So before fertilization, the gamete should be transferred to each other. Clear? But here the sperm are motile in nature, but the ovum are non-motile in nature. So that sperm must travel to reach the egg which was present inside the fallopian tube. And we already know the fertilization take place within the fallopian tube. So just after the ovulation, means the release of ovum, it travels through फिम्बरी. ठीक है, पहले ओवम से ओवरी रिलीज होने के बाद वो फिम्बरी में पहुंचता है, फिम्बरी के बाद वो पहुंचता है इन्फांडिबुलम, and from infundibulum it reaches ampulla, and finally it reaches in the ampullary isthmus junction. Clear? At the same time, sperm coming from the male reproductive system through the insemination. As we know, what is insemination? Insemination means during the complete copulation, semen is released through the penis into the vagina. It's called the insemination or the ejaculation. So after ejaculation, sperm travels from vagina through cervical canal, through uterus, and finally it reaches in the isthmus, and then isthmus to the ampullary isthmus junction. So at the junction of ampulla and isthmus, the egg and the sperm both are fused, which is called the fertilization. And at the result of the fertilization, what we will get? We will get the zygote. Clear? So zygote basically 2n इन नेचर, हम लोग को पता ही है 2n होता है, क्योंकि स्पर्म जो था n था, ठीक है, और जो यहाँ पे ओवम था वो भी n था. सो दोनों फाइनली फ्यूज होके क्या बन गया? जाइगोट बन गया. सो अगर क्वेश्चन में आ रहा है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, तुम लोग को बोलना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुला isthmus जंक्शन विद इन द फैलोपियन ट्यूब. नाउ ये जो पूरा इवेंट हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा इवेंट हो रहा है वो इतना भी इजी नहीं है जितना इजीली हम लोग ये फ्लो चार्ट के दौरान देख लिया है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जैसे हम लोग को पता होता है कि ओनली अ सिंगल स्पर्म इज एबल टू पेनिट्रेट द ओवम. एज वी नो, ओवम हैव 4 लेयर फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी. देयर इज अ 4 लेयर. फर्स्ट लेयर का नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद था वाइटलाइन मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद था जोना पेलोसिटा जो कि 3 लेयर होता है, और बाहर में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा. ठीक है ना. नाउ ये स्पर्म जो कि ना बहुत ही माइन्यूट इन स्ट्रक्चर होता है, ट्रैवल करके आ रहा है कहाँ से? फ्रॉम वेजाइना से, सर्विकल कैनल होके, यूटेरस होके, फाइनली इस्थमस तक पहुंच गया. इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में पहले से प्रेजेंट है एग. अब वो एग के अंदर उसको एंट्री लेना है, पेनिट्रेट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा. पेनिट्रेट करने के बाद ही जाके स्पर्म अपना जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को डिपॉजिट करेगा एग के अंदर या ओवम के अंदर. ठीक है ना. जो ओवम की ना हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी oocyte होता है, क्योंकि उसमें म्योसिस 2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. म्योसिस 2 कंप्लीट कब होगा? जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, मीन्स जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड एग, देन ओनली द म्योसिस 2 विल कैरी फॉरवर्ड. सो यहाँ पे जो स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग देखा था ना, जो हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, उस स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या था? स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन था ना, उस हेड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर था जिसका नाम था एक्रोसोम.
ओके, सो ये जो एक्रोसोम होता है फुल्ली कंटेन lytic enzyme. Lytic enzyme are those which are enable the sperm to penetrate the different layer which present outside the egg nucleus. So egg nucleus के बाहर में फर्स्ट जो सेलुलर स्ट्रक्चर था क्या था, वो कोरोना रेडिएटा, उसको क्रॉस करेगा. उसको क्रॉस करने के बाद जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर में ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाहर में ये जोना पेलोसिडा और उसके बाहर में सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम था कोरोना रेडिएटा. ठीक है, अब स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके फाइनली कहाँ तक पहुंच जाएगा, जोना पेलोसिडा. क्लियर. सो ये जोना पेलोसिडा में पहुंचने के बाद फिर जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम से बहुत सारा लाइटिक एंजाइम सीक्रेट होता है. उनमें से एक एंजाइम का नाम होता है हायाल्यूरोनाइडेज. हायाल्यूरोनाइडेज, ये एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखो. ये हायाल्यूरोनाइडेज एंजाइम सीक्रेट होता है कहाँ से, एक्रोसोम से. वो एंजाइम क्या करता है, एज ए लाइटिक एंजाइम इट विल सिंपली मेक ए स्मॉल पोर इन द जोना पेलोसिडा. ये जो जोना पेलोसिडा है, ये जोना पेलोसिडा के अंदर एक छोटा सा क्या बनाएगा, एक पोर बनाएगा, जिसके थ्रू से ये स्पर्म का जो हेड पोर्शन है वो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तक पहुंच जाएगा. अंदर तक एक बार जाने के बाद फिर जो जैसे मान लो ये ओवम का अंदर का है, यहाँ पे क्या था, ओवम, इसका नाम ओवम मान लो, जिसका और एक नाम होता है सेकेंडरी ओसाइट. क्लियर. अभी मान लो यहाँ पे आ गया हम लोगों का स्पर्म का न्यूक्लियस. क्लियर. ये आने के तुरंत बाद क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट था इसका म्यूसिस 2 होगा, होने के बाद एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा जो कि ना सिंपली डिजेनरेट हो जाएगा, और एक बनेगा फाइनल ऊटीड, ये होगा ऊटीड. ठीक है. अब जाके ये ऊटीड और ये स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होगा. फ्यूज होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये मान लेते हैं हम लोग का ऊटीड. ठीक है. और ये मान लो हम लोग का स्पर्म का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज हो गया. फाइनली जाके ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जाइगोट, मतलब 2n इन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखा था, ये प्रोसेस तो हम लोग को समझ में आ गया. जब पाथवे क्या है, गैमेटिक ट्रांसफर का पाथवे क्या है, पर एक्चुअली में जो फ्यूजन हो रहा है, मतलब स्पर्म अपना हेड को पेनिट्रेट कर रहा है किसके अंदर, ओवम के अंदर, जहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस है. ओवम का न्यूक्लियस के साथ जब तक वो फ्यूज नहीं हो रहा है तब तक तो जाइगोट नहीं बनेगा. सो वो जाइगोट बनने के लिए एक्रोसोम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये एक्रोसोम में जो लाइटिक एंजाइम होता है, वो लाइटिक एंजाइम बेसिकली पेनिट्रेशन में हेल्प करता है स्पर्म का हेड को एंट्री करने के लिए. ठीक है. सो ये हो गया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि ना ह्यूमन में होता है. अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो होगा इम्प्लांटेशन. क्योंकि देखो जब जाइगोट बन गया, जाइगोट का तो फर्दर डेवलपमेंट होगा. जाइगोट का कौन सा डेवलपमेंट होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. वो माइटोटिक डिवीजन से 1 सेल स्ट्रक्चर से 2 सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, ऐसे करके माइटोटिक डिवीजन होते जाएगा. होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जिस स्टेज का नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है. उस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा सेलुलर स्ट्रक्चर होगा. वो स्ट्रक्चर फाइनली जाके यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है, उस एंडोमेट्रियम लेयर में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन. सो ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है, यहाँ पे एक हम लोग फ्लो डायग्राम के थ्रू से समझने के लिए कोशिश करेंगे. ठीक है. सो जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, व्हाट वी विल गेट द जाइगोट. Okay, now zygote undergoes first cleavage, means first mitotic division to produce 2 cell structure. Clear. Then second cleavage which produce the 4 cell structure. Clear. Now that 4 cell structure again undergoes third cleavage to form a 8 cell structure. Now that 8 cell structure again undergoes the fourth division which will causes the 16 cell structure. अब ये जो 2 सेल स्ट्रक्चर से लेकर 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देते हैं मोरूला. मोरूला मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है. ए 2 सेल टू 16 सेल स्ट्रक्चर जो ये पूरा जो इवेंट है, इस इवेंट को पूरा हम लोग कहते हैं मोरूला स्टेज. इस मोरूला स्टेज के अंदर ये जो सेल अंदर में हम लोग दिख रहे हैं ना, 2 सेल या 4 सेल या 8 सेल या 16 सेल,
ईच एंड इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड द ब्लास्टोमियर। नाम को याद रखो, सेल का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। Okay, so morula is a stage where the number of blastomere varies from 2 to 16 cell structure. Clear? Now that 16 cell morula structure undergoes further repeated mitotic division to form a multicellular structure. ठीक है, ये हो गया एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। नाउ दैट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो मासेस ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उस मासेस ऑफ सेल का ब्लास्टुलेशन होता है, एक प्रोसेस है ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस मीन्स द रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर इन टू सेपरेट जोन। क्लियर? द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर व्हिच प्रेजेंट आर सेपरेट इन टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट जोन। ओके, सो द आउटर जोन, जो एकदम बाहर में जो सेल रहेगा, उस सेल का नाम हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट। याद रखना, इस सेल का जो लेयर होता है, इस लेयर का नाम होता है ट्रोपोब्लास्ट। ओके, एंड द इनर मास ऑफ सेल, ये हो गया इनर मास ऑफ सेल। इनर मास ऑफ सेल का नाम हो गया एम्ब्रायोब्लास्ट। सो ये जो एम्ब्रायोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट में जो डिफरेंशिएट हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम ही होता है blastulation. So as a blastulation we will get a new structure called the blastocyst, जो मैंने जस्ट पहले तुम लोगों को बताया था। ब्लास्टोसिस्ट होता है वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर की ना एंडोमेट्रियम लेयर में, यूट्रस में आके इम्प्लांट होने के लिए जाएगा। सो ये जो ब्लास्टोमियर फॉर्म, मतलब जहाँ पे हम लोग को इनर मास ऑफ सेल एम्ब्रायोब्लास्ट मिलेगा, मतलब एम्ब्रायोजेनिक सेल, और बाहर में एक पेरिफेरल लेयर मिलेगा जिसका नाम होगा ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, नाउ beside that two distinct zone, there is another blastocele, मतलब जो ओपन स्पेस, जो वैक्यूम स्पेस रहेगा, उस वैक्यूम स्पेस का नाम होगा ब्लास्टोक्वेल। ठीक है, ब्लास्टोक्वेल। सो ये हो गया एक ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर। नाउ दैट ब्लास्टोसिस्ट फाइनली इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है यूट्रस के अंदर, हम लोग को पता है कि यूट्रस का ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये मान लो एंडोमेट्रियम है। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम में ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर रखे इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ना, ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, ये एंडोमेट्रियम का लेयर ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर अप कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ऑलरेडी एम्ब्रायोजेनिक सेल मिल गया। अब ये एंडोमेट्रियम चारों तरफ से एनसर्कल करने से क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है फुल ऑफ ब्लड वेसल्स से बना होता है। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि कौन सा स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, तब जाके क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये होता है वो स्टेज जो स्टेज में फाइनली इम्प्लांट होता है एम्ब्रायो। कहाँ पे? यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर कोई भी साइट में हो सकता है। ठीक है ना? सो ये जो पूरा इम्प्लांटेशन प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग एक ड्राइंग के थ्रू से समझने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि ना हम लोग का एनसीईआरटी का ही ड्राइंग है। ठीक है, तो देख लेना, वो 52 पेज में तुम लोगों को मिलेगा, फिगर नंबर 3.11 होगा, जिसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड द पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रायो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी ये मेंशन किया है। यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच मेंशन किया है। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, तो मतलब हम लोग का ओवम बाहर में आ गया, ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एम्पुला स्थिमस जंक्शन, ये एम्पुला स्थिमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये स्पर्म आ रहा है, ये पहले से ही एक था, फर्टिलाइजेशन हो गया। सो एज ए फर्टिलाइजेशन विल गेट द जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सी। तो ये सी जो होता है जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज, मतलब यहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर। क्लियर? उसके बाद वो सी थोड़ा मूव किया टुवर्ड्स द यूटेरस, ये डी लिखा है, डी मतलब ये डी है जहाँ पे 4 सेल स्ट्रक्चर मिल गया हम लोग को। ठीक है, फिर डी का फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, होने के बाद ये 8 सेल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो ये ई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अब ये 8 सेल स्ट्रक्चर के बाद फिर होगा यहाँ पे एक डिवीजन, जहाँ पे कि ना 16 सेल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया तेरा पूरा मोडुला वाला इवेंट। एफ आ गया यहाँ पे एफ। ठीक है, नाउ ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, उस सेलुलर स्ट्रक्चर का क्या होगा कि ब्लास्टुलेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लास्टुलेशन हो रहा है। सो ब्लास्टुलेशन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक एम्ब्रायोब्लास्ट, जो यहाँ पे आराम से दिखाया है एम्ब्रायोब्लास्ट।
और बाहर में क्या है, ट्रोपोप्लास्ट। अब ये स्ट्रक्चर जो कि ना है जी, यहाँ पे फाइनली जाके कहाँ पे बैठ गया, एंडोमेट्रियम लेयर में, यूटेरस में आके इम्प्लांट हो गया। सो ये होता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ blastocyst and finally get implant within the endometrium layer. So ये एक बहुत बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन था। इसको छोड़ के और एक हम लोग ड्राइंग को देख लेते हैं और एक डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेगनेंसी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, प्रेगनेंसी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे क्या लिखा है, क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है oocyte एग, मतलब जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में क्या आ गया, एग आ गया। अब वो एग का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे क्या देखो, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइज होने के बाद क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट, सिंगल सेल। अब वो जाइगोट के बाद 2 days मतलब 2 दिन बाद फाइनली ये क्या आ गया, 4 सेल स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 day स्ट्रक्चर, मतलब 3 दिन के बाद वो सी मतलब ये मोरूला फॉर्म हो गया। मोरूला फॉर्म होने के बाद फिर फाइनली डी में आएगा, जहाँ पे होगा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम के बाहर में जो जोना फ्लैसिडा लेयर था ना, वो जोना फ्लैसिडा लेयर धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, हो ना। होने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, फाइनल ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि ना ये है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 6 days के बाद, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे 6 days बाद जाके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट फाइनली कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, ये जो देखो इंडोमेट्रियम लेयर मेंशन किया है, इस एंडोमेट्रियम लेयर में जो कैविटी ऑफ यूटेरस होता है, ये जगह में आके फाइनली वो इम्प्लांट हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। जो 9th मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उस 9th मंथ का अंदर से 6 days कहाँ चला गया, ये इम्प्लांटेशन के लिए चला गया। सो इम्प्लांटेशन कौन सा स्टेज में हो रहा था, वो हो रहा था ब्लास्टोसिस स्टेज में, जो कि ना फर्टिलाइजेशन के बाद से टोटल कितना दिन चाहिए होता है, 6 days। सो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उसका 6 days बाद फाइनली वी गेट द ब्लास्टोसिस्ट विच रेडी टू इम्प्लांट विद इन द एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि ना यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। सो ये हो गया पूरा इवेंट हम लोग का आज का टॉपिक का, जो कि ना था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लासेंटेशन कैसे हो रहा है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन कैसे हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है। फाइनली पार्चुरेशन कैसे होगा, वो हम लोग स्टेप वाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। थैंक यू।